Welcome student in biology class. In previous video we described about the restriction endonuclease enzymes, nomenclatures, as well as also discussed that is the gel electrophoresis process. Today we discuss the second point, that is the cloning vectors or vehicle DNA or carrier of the DNA. ठीक है, वाई वी चूज दिस टॉपिक बिकॉज थ्रू दिस टॉपिक वी नो अबाउट देम हाउ कैन DNA आर ट्रांसफर फ्रॉम one organism to the another. Okay, so what is the cloning vectors? What is the vector? Vector किसको कहते हैं हम? The vector are DNA molecules that can carry a foreign DNA segments and replicate inside the host cell. Okay, means the vectors are DNA molecules that can carry a foreign DNA segments and replicate inside the host cell. जो host cell के inside भी क्या हो, उसमें replication करने की कैपेबिलिटी हो. Vectors may be plasmids or bacteriophages, plasmid, yeast artificial chromosomes, bacterial artificial chromosomes, and viruses. Okay, there are different type of vector that is used. So we discussed there are one vector, that is the plasmid vectors. What is the plasmid vectors? What is the plasmid? These are the extra chromosomal self-replicating, usually circular double-stranded DNA molecules found naturally in many bacteria and also in some yeast. ठीक है, तो प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मटेरियल होता है जिसकी अपनी सेल्फ रिप्लिकेशन करने की कैपेबिलिटी होती है. सेल सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, डबल स्टैंडर्ड, जस्ट लाइक यू सी हियर. दिस इज द डबल लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट. ठीक है, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं और नॉर्मली दैट इज फाउंड इन केस ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज इन केस ऑफ सम yeast में ये प्रेजेंट होता है. The plasmid molecules may be present as one or two copies or multiple copies, means 500 to 700 inside the host organism. इतनी कैपेबिलिटी इसकी होती है रिप्लिकेट करने की. The most widely used versatile easily manipulated vectors PBR 322 is an ideal plasmid vector. मैक्सिमम जो हम जेनेटिकली मॉलिक्यूल्स में जो यूज़ करते हैं वेक्टर, वह PBR 322 वेक्टर्स प्लाज्मिड वेक्टर है, इसका यूज़ किया जाता है. अब इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें, वी आल्सो डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड या वीडियोस अबाउट द नॉमेनक्लेचर्स. तो यहाँ पर शॉर्ट में जान लीजिए वाई दैट इज गिवन द PBR 322 वेक्टर्स. P डिनोट दैट इज द प्लाज्मिड. P किसके लिए डिनोट किया गया? प्लाज्मिड के लिए. BR स्टैंड फॉर वोलिवर एंड रॉड्रिग्यूज हु कंस्ट्रक्टेड दिस प्लाज्मिड. ठीक, इस प्लाज्मिड को जो कंस्ट्रक्ट किए थे दो साइंटिस्ट थे, वोलिवर एंड रॉड्रिग्यूज, उसके नाम पर इसको रखा गया BR. ठीक है, एंड 322 means is the number given to the distinguish this plasmid from others developed in the same laboratory. For example, there are plasmid PBR 325, PBR 327, PBR 328 etc. ठीक है, सेम लेबोरेटरी में किया, उसी लेबोरेटरी में इसका नंबर किया था 322. दिस इज द नंबर.
क्लियर हो गया ये? ओके, सो व्हाट इज द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर? क्या रिक्वायर्ड होती है फैसिलिटेट करने के लिए, क्लोनिंग होने के लिए वेक्टर को? पहला है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशंस, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशंस मीन्स ओरिसाइड्स। Origin of replication is the specific sequence of DNA bases which is responsible for initiating replication, जहाँ से replication start होता है। A prokaryotic DNA has a single origin of replication while eukaryotic DNA may have more than one origin of replication। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है उसमें सिंगल ओरिजिन साइड होता है, ओरिजिन site for replication, but in case of eukaryotic there is more than one site are present for the replications. That is clear. Second one is the selectable markers. Some genes called the selectable markers, कुछ जीन को ही selectable marker कहते हैं, which help in the selecting that those host cell which contain the vectors and eliminating the non-transformant। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन? क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन अ होस्ट बैक्टीरियम। ठीक है, डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है किसमें? होस्ट बैक्टीरियम में। जनरली द जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, kanamycin or chloramphenicol etc. are useful selectable marker for E. coli। ठीक है, इनकोडिंग रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक इसके लिए जीन यूज़ किया जाता है, जैसे डिफरेंट टाइप दैट इज गिवन ईयर। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, एम्पिसिलिन है, कमेसिलिन है, क्लोरोफेनिकोल्स इज दैट इज यूज फॉर द सेलेक्टेबल मार्कर की तरह ये एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। किसके लिए? यूकोलाई के लिए, इस्चेरिशिया कोलाई के लिए। द कॉमन इस्चेरिशिया कोलाई सेल्स नॉट रेजिस्टेंट अगेंस्ट एनी दिस एंटीबॉडीज। ठीक है, दिस इज नॉट रेजिस्टेंट अगेंस्ट, जो एंटीबॉडी किसी एंटीबॉडी के अगेंस्ट है रेजिस्टेंस नहीं होता। प्लाज्मिड PBr 322 हैज़ टू रेजिस्टेंट जीन। यदि प्लाज्मिड 322 की बात करें तो उसमें दो रेजिस्टेंट साइट होता है। वन इज द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मतलब AMPR एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस TET विच आर कंसिडर यूजफुल फॉर द सेलेक्टेबल मार्कर। लेकिन इन केस ऑफ PBr 322 में दो साइट्स होता है, AMP होता है, ठीक, एम्पिसिलिन, और यहाँ पर आपका टेट्रासाइक्लिन होता है, ये टेट्रासाइक्लिन है, और यहाँ पर एम्पिसिलिन होता है AMP, और यहाँ पर TET टेट्रासाइक्लिन। ये दो रेजिस्टेंस सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होते हैं। दैट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट्स क्या होती है? इन प्लाज्मिड PBr 322 हैज़ द वैरायटी ऑफ यूनिक रिकॉग्निशन साइट्स फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यूनिक साइट होता है जहाँ से रिकॉग्निशन साइट होता है फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है। टू यूनिक साइट्स P फर्स्ट one and PVU first are located within the ampicillin. Just like you see, PVU first and PST फर्स्ट, ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होता है? एम्पिसिलिन में, ठीक, और are located within the ampicillin genes and BAMH1 you see here, BAMH1 Sol first, this is the Sol first etc. are the within tetracycline gene। ये tetracycline gene यहाँ होता है, tetracycline gene के अंदर प्रेजेंट है।
सम अदर यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स आर इको R1, इसमें अदर साइट्स भी है, जैसे इको R1 है, क्ले फर्स्ट है, हिंट सेकेंड है, PVU सेकेंड है, रोप कोड्स है, दिस ओके, दिस इज द डिफरेंट साइट्स. द प्रेजेंस ऑफ The presence of restriction sites within the marker tetracycline and ampicillin permits an easy selection for the cell transfer with the recombinant PBR 322. Insertion of DNA fragment into the plasmid using enzyme PS first or PVU first places the DNA insert within the gene ampicillin. ठीक है, एम्पिसिलिन में इसको इंसर्ट करते हैं PST फर्स्ट या PVU फर्स्ट. दिस मेक एम्पिसिलिन नॉन फंक्शनल. उस कंडीशन में जो एम्पिसिलिन क्या होता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है. बैक्टीरियल सेल कंटेनिंग सच रिकम्बिनेंट PBR 322 विल बी अनएबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन. ठीक है, तो PBR 322 जो होता है उस कंडीशन में अनएबल हो जाता है ग्रोथ करने के लिए, बट विल ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन, लेकिन टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करता है. सिमिलरली उसके अगेंस्ट यूज करते हैं. सिमिलरली व्हेन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम BAM-H1 या साल फर्स्ट इज यूज द DNA इंसर्ट, उस कंडीशन में DNA इंसर्ट करते हैं, इज प्लेस्ड विद इन द जीन टेट्रासाइक्लिन, उस कंडीशन पे इंटर करेगा, मेकिंग इट नॉन फंक्शनल, जिसके कारण टेट्रासाइक्लिन क्या हो जाएगा वहाँ पर, नॉन फंक्शनल हो जाएगा. एंड बैक्टीरिया सेल प्रोसेसिंग सच एज रिकम्बिनेंट PBR 322 will therefore grow on ampicillin but non tetracycline. तो टेट्रासाइक्लिन उस समय क्या हो जाएगा, इनएक्टिव आएगा, और एक्टिव कौन हो जाएगा, एम्पिसिलिन, और वहाँ पर ग्रोथ चालू हो जाती. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट वन इज द वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. A soil inhibiting plant bacterium, Agrobacterium tumefaciens, a pathogens, that is disease causing agents है, ठीक है, Agrobacterium tumefaciens of several dicot plants is able to transfer a piece of DNA. ठीक है, एबल किसके लिए होता है, ट्रांसफर ऑफ पीस ऑफ DNA known as tDNA. tDNA क्या है, द tDNA cause tumor. टी से ट्यूमर DNA जो कॉज करता है. ठीक है, द ट्यूमर्स आर कॉल्ड क्राउन गॉल, और इस डिजीज को क्राउन गॉल डिजीज भी बोला जाता है, ट्यूमर फॉर्म जो होता है. ट्यूमर फॉर्मेशन इज इंड्यूस्ड बाय टी प्लाज्मिड, TI लिखा हुआ, टी प्लाज्मिड्स मीन्स ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. अ जीन ट्रांसफर अकर्स विद इन ह्यूमन एफर्ट्स. द बैक्टीरियम इज कॉल्ड नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ द प्लांट. ठीक है, तो यह कॉमनली नोन एज द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, प्लांट के लिए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है. सिमिलरली रिट्रोवायरस, दूसरा एग्जांपल है रिट्रोवायरस, दैट इज कॉज द लिकोसिस और सार्कोमा टाइप ऑफ कैंसर जो होता है बॉडी में. इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स आर एबल टू चेंज नॉर्मल सेल्स इनटू द कैंसरस सेल्स, जो कन्वर्ट करता है नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में. The tumor-inducing TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens have been modified into cloning vectors, which is not pathogenic to the plants. ठीक है, यह प्लांट के लिए क्या हो जाता है, पैथोजेनिक अब ना हो करके उसको प्रोटेक्ट करता है. However, it is still able to use procedure to deliver gene of our interest इनटू द वेरियस प्लांट, और ये जिनको मैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार डिफरेंट प्लांट में हम इसका यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, सो दिस इज अ डिफरेंट टाइप, दिस द फीचर्स दैट रिक्वायर्ड फॉर फैसिलिटेट क्लोनिंग वेक्टर इनटू द वेक्टर. ओके, द डिफरेंट वेक्टर जस्ट लाइक ए लैम्डा फेज. लैम्डा फेज वेक्टर में आपके कई है, मिक यम 13 फेज वेक्टर्स है,
कॉस्मेट वेक्टर्स है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल वेक्टर्स है, ईस्ट आर्टिफिशियल वेक्टर्स है, एटसेट्रा। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर दैट इज यूज्ड। ओके, दिस इज द प्रोकैरियोटिक वेक्टर थे सभी अभी जो बताया। यूकैरियोटिक वेक्टर्स या यूकैरियोटिक व्हीकल्स, वी आल्सो डिस्क्राइब वेक्टर दैट इज सुटेबल फॉर द प्रोकैरियोटिक cells, स्पेशली इन E. coli. The vehicle DNA are constructed in the various way, but in the DNA of simian virus 40, याद रखिएगा ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, simian virus 40 SV40 or its derivatives is most commonly used vehicle for the mammalian cells, मतलब यूकैरियोटिक सेल में इसका यूज़ किया जाता है। दिस vehicle can accept an insert of the length of 4.3 kilobase and it does not contain any marker, इस पर कोई मार्कर नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड है पैसेंजर डीएनए या फॉरेन डीएनए या डीएनए इंसर्ट। द डीएनए विच ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म into another by joining it with the vehicle DNA is called the passenger or foreign DNA। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज द पैसेंजर डीएनए या फॉरेन डीएनए या डीएनए इंसर्ट किसको बोलते हैं। मीन्स इसमें क्या है, जो डीएनए इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है बाय ज्वाइनिंग विद द व्हीकल, व्हीकल के साथ उसको ज्वाइनिंग करके उसको ट्रांसफर किया जाता है। So this is called the passenger or foreign DNA। Generally 3 type of passenger DNAs are used। 3 तरह के passenger DNA यूज़ किए जाते हैं। पहला these are complementary DNA, cDNA जिसको बोलते हैं। Second one is the synthetic DNA, sDNA, and third one is the random DNA। तो complementary DNA क्या है, ये एग्ज़ाम में आपके आते हैं, मैक्सिमम पूछा जाता है। The complementary DNA it is the synthesized on RNA template, यह synthesized होता है RNA template से with the help of reverse transcriptase enzymes discovered by the Temin and Baltimore। ठीक है, the DNA is separated from the RNA DNA duplex in the presence of alkaline phosphatase enzymes। DNA RNA जो मिक्स आता है, ठीक है, अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम के द्वारा इसको सेपरेट कर लेते हैं। अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड इज फॉर्म ऑन द सेपरेटेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट आपको मिल गया तो उसके थ्रू वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। जस्ट लाइक यू सी हियर, इसका दिया हुआ है आपको डायग्राम क्लियर, यहाँ पर यू सी हियर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक, पहले आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा फॉर्मेशन होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और एमआरएनए दोनों प्रेजेंट है। ट्रीट विद द अल्कली डाइजेस्ट ऑफ एमआरएनए, जो आरएनए था वो डाइजेस्ट हो गया, बचा क्या, कम्प्लीमेंट्री डीएनए बचा। दिस डीएनए पॉलीमरेज मेक्स द कम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड, पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा इसका कम्प्लीमेंट्री बन जाता है, 1 से 2 स्ट्रैंड बन गया। यू सी हियर डबल स्ट्रैंड डीएनए फॉर्मेशन हो गया। सो दिस इज द कम्प्लीमेंट्री डीएनए। सेकेंड है सिंथेटिक डीएनए। इट इज द सिंथेसाइज्ड ऑन डीएनए टेम्पलेट और विदाउट ए टेम्पलेट, या डीएनए टेम्पलेट्स या विदाउट डीएनए टेम्पलेट के भी सिंथेसाइज होता है। दिस इज नोन एज द आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड टेम्पलेट्स। ओके, and third one is the random DNA। Small fragments are formed by breaking a chromosomes of an organisms in the presence of restriction endonuclease। ठीक है, तो स्मॉल फ्रेगमेंट फॉर्म होता है बाय ब्रेकिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम ऑफ ऑर्गेनिज्म जब ब्रेक करता है उसके द्वारा स्मॉल फ्रेगमेंट डीएनए का फॉर्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के प्रेजेंस में फॉर्म होते हैं। So this is the passenger DNA or foreign DNA or DNA insert, that is clear। Okay, thank you for watching the videos। यदि ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।
In next video we describe about the competent host, means for transformation with the recombinant DNA, how can that is transfer। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।